Hello dear students, today we are going to discuss another important topic of your syllabus, the dissolution of partnership. It is very important from the examination point of view. Generally examiner sets a question on dissolution, and this is simpler than other topics. It is easier than admission, retirement and death of a partner. So, try to understand the concept underlying the dissolution of the partner. We have two words, one is dissolution of the partnership, the other is dissolution of the firm. Dissolution of the partnership and dissolution of the firm. Dissolution of the partnership. If there are three partners, they are sharing profits in the ratio of 5:3:2. One partner retires. This is the dissolution of partnership firm. Now it is a new partnership between two partners. This is dissolution of partnership. If a new partner joins, dissolution of partnership. It is also called reconstitution of the partnership. The old one partnership has gone, the new one has been reconstitution. But in case of dissolution of firm, the business is dissolved. In case of dissolution of partnership, the business continues. There were three partners working together and continuing the business. Now there will be two partners working together, continuing the business in case of retirement. And if it is a new admission of a partner, then new partners, maybe three or four partners will continue with the business. The business continues, only the partnership or the number of partners, they undergo a change. But in case of partnership firm, the entire business is wound up, closed, and after the dissolution there is no business left to be carried on by the partners. And how it is done, try to understand this. You have studied in your 11th class accounting equation. What is the accounting equation of a business? It is capital plus liabilities equal to assets. Remember, this is the equation. So the capital introduced by the owners plus outside liabilities, maybe creditors, bills payable, loans from the bank, bank overdraft, outside liabilities, they are equal to assets. Assets include items like buildings, furniture, land, machinery, tools, plant, fixed assets. Then we have assets like debtors, bills receivable, cash, prepaid, and all such expense items. So when the business is being continued, when the business is going on, this equation is there. When the partners decide to wind up the business, to dissolve the firm, what is to be done? This equation will become ultimately 0, 0, 0. No capital, no liabilities and no assets. When this equation is reduced to this, the business is dissolved. Business is wound up. So what is to be done? All assets will be sold or realized. ये सारे बिक जाएंगे, सारे assets खत्म. कैश को छोड़ को, कैश तो पहले realized है. Other than cash, all assets will be realized. Either they are sold in the market or they are taken over by the partners, whatever it is.
सारे एसेट्स अकाउंट बंद, नो एसेट्स अकाउंट, ओनली एक रह जाएगा कैश अकाउंट। इस तरफ आउट ऑफ द कैश रियलाइज्ड ऑल लायबिलिटीज विल बी पेड। और याद रखना, जब पेमेंट करनी है पहले बाहर वालों को देनी है, अपने आप को नहीं, कैपिटल को नहीं देनी, पहले पार्टनर्स को नहीं देनी, पहले देनी है आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को पहले दो, बिल्स पेबल पहले दीजिए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग पहले दीजिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग पहले दीजिए, बैंक का लोन पहले दीजिए। ठीक है, किसी पार्टनर ने अगर पार्टनर्स वाइफ और पार्टनर्स ब्रदर, पार्टनर सन किसी ने लोन दिया है वो पहले दीजिए। और सबसे अंत में पार्टनर्स को पैसे देने हैं, और जब पार्टनर्स को भी पैसे देने हैं उनमें भी ऐसा करना है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो भाई वो पहले देना। किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है तो वो पहले देना, सबसे अंत में इनको पैसे देने। सो क्या करना है, सारे एसेट्स रियलाइज कर लो, कैश में कन्वर्ट कर दो, या कोई पार्टनर ले जाए। ठीक है, और इधर जो लायबिलिटीज है इन सबको पे कर दो। ठीक है, कैपिटल के साथ मिलती जुलती है जनरल रिजर्व। अगर कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, ये किसका है, ये भी कैपिटल का है, तो ये जनरल रिजर्व भी कैपिटल में ही ट्रांसफर कर दो। और कोई भी रिजर्व है सब कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इसी तरह का एक माय डियर स्टूडेंट रिजर्व होता है, उसे कहते हैं वर्कर्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक ये रिजर्व होता है, और एग्जामिनर्स बहुत देते हैं इसको रिजर्व्स। ये रिजर्व होता है इसलिए कि अगर किसी वर्कर के चोट लग जाए तो भाई इसमें से पूरा करेंगे। ये रिजर्व रखा हुआ है कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई, किसी वर्कर के चोट लग गई, तो इस रिजर्व में से उसका जो कॉम्पेंसेशन है, उसको हर्जाना देना है, वो इसमें से दे दिया जाएगा। और बाई चांस अगर चोट नहीं लगी किसी भी वर्कर के, तो भाई ये वर्कर्स कंपनसेशन फंड विल बी ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व। ये एक जनरल रिजर्व भी बन जाएगा। इसलिए इन दोनों को इकट्ठा ही करना। जनरल रिजर्व कैपिटल्स पार्टनर्स को दे दो, पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। और वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इसको क्या करना, अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये भी जनरल रिजर्व की तरह ही ट्रीट होगा। और अगर कोई क्लेम है, मान लो 5,000 का रिजर्व है हमारे पास और 5,000 का क्लेम है, तो फिर क्या करना है, फिर इसका क्लेम बना देना है। इसका क्लेम बना के किसको देना है, वो देना है वर्कर्स को। दिस क्लेम विल बी पेड टू दी वर्कर्स। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू क्लेम एंड क्लेम विल बी पेड टू दी वर्कर्स, को पे कर देना है। राइट, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। सारे एसेट्स रियलाइज होंगे, सारी लायबिलिटीज पे होंगी। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेना चाहता है, ले ले। अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटीज पे करना चाहता है, पे कर दे। अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन के खर्चे पे करना चाहता है तो खर्चे पे कर दे। अगर कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के खर्चे पे करना नहीं चाहता तो भाई फर्म दे देगी खर्चे अपने कैश अकाउंट में से। तो इस तरह से सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। They are disposed of, they are sold, they are realized, and when the money comes into the hands of the partners, this money is used for making payment to the outside liabilities, and after outside liabilities are paid, then the amount will be paid to the capital accounts of the partners, or the amount will be paid to the partners, and the entire equation, this equation will become then capital 0, liability 0 और cash। जब capitals, partners capitals are paid
when partners are paid, after that ये एक निशानी होगी कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। कैश अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रहना चाहिए, सारा कैश बराबर होना चाहिए, ना तो कैसा कम पड़ना चाहिए ना ही बचना चाहिए। ये एक निशानी होती है। इसीलिए कहते हैं कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे पता लग जाता है कि ये मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन आपको दे के एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में बारीकी सारी चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आइटम्स होती हैं। ये एक क्वेश्चन हमने नोट किया है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के पहले और इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे इनको रिकॉर्ड करना है डिसोल्यूशन को। दिस इज़ ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म ऑफ 2 पार्टनर्स। उनके नाम है अनुज और ब्रिज। 2 पार्टनर हैं जिनके नाम है अनुज और ब्रिज, और अनुज का कैपिटल है 10,000, ब्रिज का कैपिटल है 30,000 और देयर इज ए रिजर्व फर्म ऑफ 12,000, 12,000 का रिजर्व फंड है। क्रेडिटर्स आर 26,000। ये रहा वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, ये है 10,000। और अनुज ने लोन दिया हुआ है, अनुज का लोन है 8,000 और ब्रिजेस वाइफ्स लोन 12,000। और ये जरूर आएगा आपको एग्जाम में, एग्जामिनर देता है कभी कुछ, कभी किसी ए का लोन दे देगा, कभी बी का लोन दे देगा, कभी बीज सन्स लोन, बीज वाइफ्स लोन, इस तरह के ये देते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम मानी जाती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है जिनमें या पार्टनर्स का लोन हो या किसी पार्टनर के रिश्तेदार का लोन हो, फ्रेंड का लोन हो। ये क्वेश्चन इसीलिए हमने लिया है। और ये है अनुज लोन 8,000 और ब्रिजेस वाइफ्स लोन इज 12,000। नाउ ब्रिजेस वाइफ इज एन आउटसाइडर, ब्रिजेस वाइफ ना आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये इनमें आएगी, इसको पहले देना है। अनुज जो इनसाइडर है पहले इसको पे करना, फिर अनुज को पे करना, और अनुज को पे करने के बाद फिर कैपिटल्स पे करने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटल पे कर दे तो अनुज बेचारा जिसने लोन दिया था वो रह ही जाए। सो दिस इज लेड डाउन। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा 1932 का, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 48, याद रखना जी। सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सेज that when the partnership is dissolved and their accounts are settled, first of all outsiders liability should be paid, not the insiders. Outsiders liabilities must be paid first, and then after that the insiders. And when insiders mean partners are paid, first of all any partner's loan should be paid, and then the partner's capital should be paid this amount. So this is the liability side. Now come to the asset side. We have cash at bank of rupees 23,500. There is a stock of 5,000, and look here, there is a goodwill of 20,000 rupees. Now debtors, this is an important item, my dear student. This is an important. Why? It is given like this: debtors are 20,000 and provision for doubtful debts is 1,000, and that figure is how much? 19,000. Now there are 2 accounts. There are 2 accounts. One is debtors, the other is provision. And when the dissolution takes place, सारे account बंद करने हैं. So you have to close this account as well as this account. ये दोनों account बंद करने हैं। ऐसा मत करना कि केवल 19 ही कर दो, 19 से ना तो ये बंद होगा ना ये बंद होगा। सो हमें ये इसको बेचना है, इसको रियलाइज करना है, ये नहीं, इसी रियलाइज करना है हमने। सो देयरफॉर डेटर्स लेस प्रोविजन। सो दिस इज 19 इज नेट फिगर, बट वी आर कंसर्न्ड विद दीज 2। अभी बताते हैं आपको। यस, हियर इज एन एडवर्टाइजमेंट expenditure. This is a deferred expenditure. Large amounts are spent on advertisement in television and others. The effect of this advertisement continues for more than 1 year.
it continues to second year, third year, fourth year. Therefore, it is treated as deferred expenditure, that its benefit will come next year. So, this is the deferred expenditure, 5 years. It is just the opposite of reserve fund. We treat it just in the same way as we treat reserve fund. Reserve fund is given to the partners, and any deferred expenditure will be deducted from the partners capital account. ये काट दिया जाएगा उनसे क्योंकि ये खर्चा है, और ये रिजर्व फंड पैसा जमा किया हुआ है ये पार्टनर्स को दे दिया जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स. बाकी बचे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ ₹40,000. सो हमें ये सारे एसेट्स रियलाइज करने हैं. ये रियलाइज करने के बाद पैसे बांटने हैं. पैसे किसको देने हैं? पहले ये आउटसाइड लेबर्स, क्रेडिटर्स को पहले देंगे. उसके बाद पेमेंट करेंगे हम वाइफ्स लोन, ये भी पे करेंगे. उसके बाद करेंगे इसका अनुज का लोन. उसके बाद इन दोनों कैपिटल्स को पैसे देंगे, और जैसे इन दोनों कैपिटल को पैसे दे दिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात और बता दें. हमने 2-3 बार बोला है कि ये सारे एसेट्स रियलाइज करेंगे. ठीक है, जब एसेट्स हम रियलाइज करेंगे, भाई हमारे पास एसेट फिक्स्ड एसेट्स के हैं. कितने के हैं ये? द फिक्स्ड एसेट्स आर 40,000. It is possible that there is a gain on the realization of fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स के जब हम बेचे, फायदा भी हो सकता है बेचने पर, लॉस भी हो सकता है. कोई फिक्स्ड एसेट महंगा बिक जाए, कोई फिक्स्ड एसेट सस्ता बिक जाए. फिर स्टॉक है हमारे पास, अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ये है स्टॉक, कितने का है? 5,000 का. ये 3,000 का बिकता है. खराब स्टॉक है, या ये भी हो सकता है 8,000 का बिक जाए. सो आई मीन टू से व्हेन वी डिस्पोज ऑफ द एसेट्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस. सिमिलरली व्हेन वी पे द लायबिलिटीज, कोई क्रेडिटर ही नहीं मिलता, या तो देश छोड़ के चला गया, वो मिलता ही नहीं, हम उसे ढूंढते हैं, मिलता नहीं, या उसकी डेथ हो गई है. तो क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं जब हो सकता है कोई क्रेडिटर ना मिले, ये हमें फायदा हो जाएगा. ओके, और ये भी हो सकता है कि हम देने गए हाउ मच मनी टू दी क्रेडिटर्स? 26,000, लेकिन 2-3 क्रेडिटर और रह गए. भी हम भी आपके क्रेडिटर हैं, हमने उनको गिना ही नहीं था. मे बी वी हैव टू पे मोर. और क्रेडिटर्स हमें कहते हैं नहीं जी 26 नहीं लेने, हमें तो इसके साथ इंटरेस्ट भी दो, हमें ज्यादा पैसा चाहिए. तो अगर मैं वो पैसा देना पड़ जाए तो दैट मीन 26 की जगह हमें 27 देना पड़ेगा, हमें लॉस हो जाएगा. सो देयरफॉर व्हेन वी सेटल दी क्रेडिटर्स, व्हेन वी सेटल दी लायबिलिटीज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं. अच्छा, आप पैसे देने आए, हम आपको 2% छोड़ते हैं, गेन हो गया. या क्रेडिटर्स को ज्यादा देना पड़ता है तो लॉस हो गया. कोई क्रेडिटर ट्रेस नहीं होता तो गेन हो गया. कोई एसेट महंगा बिक जाता है तो प्रॉफिट हो गया. कोई एसेट सस्ता बिकता है, कम उसकी प्राइस हमें मिलती है तो लॉस हो जाएगा. इस तरह से देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. इसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं. उस अकाउंट का नाम ही रख दिया रियलाइजेशन अकाउंट. क्या नाम रख दिया? रियलाइजेशन अकाउंट. इस अकाउंट जब बन जाएगा ये अकाउंट, इस अकाउंट के द्वारा वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करना है हमने, तो एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन उससे पहले हम ये 3, 4, 5 ये नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, इनको देख लें. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st of December 2011 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ये टर्म थे, अनुज took away the stock at 20% डिस्काउंट. ये जो स्टॉक था कितने का? 5,000 का. इसको अनुज ले गया, कहता भाई ये तो मुझे दे दो, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन 20% डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट 5,000 के बनेगी 1,000, तो 4,000 में वो ले गया. किसी और को नहीं बेचा, अपने ही पार्टनर को बेच दिया. ठीक है, और देखो डेटर्स रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 6,000. ये वाले डेटर्स, ये नहीं, ये वाले डेटर्स थे. ये हम पैसे लेने गए तो इन सब
के पैसे जो हमें मिले ये 6% कम मिले। 20,000 में से 6% जो है ये 1,200 रुपया बन जाएगा, तो हमें 18,800 रुपीज़ मिले। कितने मिले? 18,800। फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा, Anuj took away the stock at 20%. Anuj and Bridge, they share profits and 3:2. That is realized 6%. There is an unrecorded asset which is realized at 10,200. Unrecorded asset, partners दुकान बंद कर रहे हैं, बंद करते वक्त उन्हें एक ऐसा एसेट मिल गया जो बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है। ये बैलेंस शीट है, इसमें एक एसेट है ही नहीं, लेकिन दुकान में पड़ा हुआ है वो एसेट। कैसा, कौन सा एसेट हो सकता है? आई गिव यू एन एग्जांपल। लुक, पार्टनर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, दे वर्कड वेरी हार्ड, दे अर्नड लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी दैट दीज पार्टनर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। गवर्नमेंट ने उनको एक प्राइज दिया, एक ट्रॉफी दी, और वो ट्रॉफी है सोने की बनी हुई, प्योर सोने की। अब ये तो ताले में बंद करके रखी थी उन्होंने, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूएबल है। और अब जब सारे एसेट बिक रहे हैं, लास्ट में ट्रॉफी बच गई, और जब ये मिली थी इसकी कोई जर्नल एंट्री तो बनाई नहीं उन्होंने, ये तो आ गई। अब क्योंकि दुकान बंद हो रही है, ये भी बिकेगी। और इसकी ट्रीटमेंट बच्चों बहुत आसान है, हम बता दें, यही तरीका करना है। आप ये मानो कि कोई चीज अनरिकॉर्डेड है ही नहीं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, डिफरेंस इज ओनली दिस, जो अनरिकॉर्डेड है उसको आप ट्रीट करो, इट इज रिकॉर्डेड एट 0। वो यहां लिखो ना ट्रॉफी, यहां ट्रॉफी लिख लो, इधर 0 लिख दो। जो 0 वाली चीज है आपकी, वो अगर 30,000 की बिक जाती है तो आपका 30,000 का फायदा हो गया। यू अंडरस्टैंड? कोई एसेट महंगा बिक जाए तो वो हमें प्रॉफिट है। एक एसेट जो 0 पर रिकॉर्डेड है वो 30,000 का बिक गया तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का बिक गया तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सो इस तरह से करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। इसी तरह से होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक क्रेडिटर हमने लिखा ही नहीं था, वो पैसे मांगने आ गया, तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। हमें मान लेंगे कि ये क्रेडिटर 0 का है। पहले क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं? ये क्रेडिटर्स हैं 26,000 के, इसमें एक क्रेडिटर 4,000 का नहीं लिखा हुआ, तो हमें अब तो मान लेना कि रिकॉर्डेड है 0। अभी तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, इसकी 0 वैल्यू है। अब 0 वाले को 4,000 देने पड़े, बोलो लॉस हुआ या गेन है? जो हमारे पास 0 लिखा हुआ उसको 4,000 देने पड़ रहे हैं, ये तो हमारे दुख होगा, ये तो लॉस हो गया। इसी तरह एक ट्रॉफी जो सोने की है, जिसकी रिकॉर्डेड वैल्यू 0 है, लेकिन वो अगर 30,000 की बिक जाती है, इट्स ए गेन टू अस। सो रिमेंबर, अनरिकॉर्डेड आइटम्स आर रिकॉर्डेड एट 0, and thereafter it is very simple, it is to be treated just in the same way as other assets and liabilities are treated. Okay, तो इस तरह से इनको करते हैं जो अनरिकॉर्डेड एसेट। देयर इज अ अनरिकॉर्डेड एसेट व्हिच रियलाइज 10,200, याद रखना है इसको। नंबर सी इज फिक्स्ड एसेट्स, सारे रियलाइज हो गए कितने के? 61,000 के। देयर इज ए गुडविल, गुडविल इसमें देखिए गुडविल कितनी लिखी हुई है, गुडविल इज 20,000 बट गुडविल रियलाइज्ड 40,000। इतनी अच्छी दुकान थी कि 40,000 में गुडविल बिक गई। सो दिस इज गुडविल रियलाइज्ड 40,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1,000। दे वर बोर्न बाय अनुज एंड पेड बाय द फर्म। अनुज कहता है भाई ये खर्चे मैं दे दूंगा, ये खर्चे आई विल पे दी खर्चे, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। उसने फर्म को कहा, फर्म के कैशियर को कहा भी पैसे आप दे दो, जब मेरी सेटलमेंट होएगी तो मेरे अकाउंट में से काट लेना। यू अंडरस्टैंड? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब सबसे बाद में पैसे मिलने शुरू होंगे तो मेरे अकाउंट में से इतने पैसे काट लेना, लेकिन बियर मैं करूंगा। ठीक है? सो इसमें expenses 1,000 were borne by Anuj, paid by the firm. Okay?
If the expenses are borne by Anuj and paid by Anuj, अनुज ही ने देने हैं, अनुज ने ही बियर करने हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अनुज ने बियर करने हैं और अनुज ने ही पे करने हैं, तो इसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा उधर खड़ा हुआ खाना खा रहा है, उसी ने खाना खाना है, उसी ने बियर करना, उसी ने पे करना, कोई हमें क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने की उसकी। दिस इज वेरी सिंपल। एंड लास्ट ऑफ ऑल देयर इज ए क्लेम, देयर इज ए क्लेम by a worker for ₹9,000 for compensation। ये compensation जो है 10,000 के, इसमें से एक वर्कर ने क्लेम कर दिया कि आप मुझे 9,000 रुपया दोगे, और पार्टनर्स कहते ठीक है अभी इस वर्कर के चोट लगी थी, इसको 9,000 देना है। बाकी कितना बचा? 1,000। 1,000 विल बी ट्रीटेड लाइक जनरल रिजर्व। 1,000 जो है वो जनरल रिजर्व की तरह माना जाएगा जैसे रिजर्व फंड है, लेकिन बाकी का जो 9,000 है इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए क्लेम। ये तो क्लेम बना लिया जाएगा और इस क्लेम को पे कर दिया जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज हाउ दिस एंटायर क्वेश्चन इज टू बी स्टडीड thoroughly and understood. Now look how we do this. I am going to do this before you. Please follow the same procedure that I do and you will be able to solve the question very easily. So we prepare these accounts. Here is the ruling. There is one realization account, then there are capital accounts of Anuj and Bridge, one bank account. Generally these three accounts are prepared. But when there is any partners loan, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बना देना, क्योंकि पार्टनर्स को पेमेंट करने से पहले इसको पे करना है। सेक्शन 48 कहता है कि सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज देनी है और आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद जब पे हो जाए तो उसके बाद पार्टनर्स जो है उनका लोन वगैरह वो देना है और इसके बाद फिर इनको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद देखोगे आपके बैंक अकाउंट का क्या हाल होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस BD। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, अनुज कैपिटल अकाउंट 10,000, ये लिख लिया, 30,000 एंड 10,000। इधर बैंक अकाउंट का बैलेंस भी लिख लीजिए, ये है 23,500, ये भी इधर लिख लीजिए, डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,500 कैपिटल्स के लिख लिए, इधर लिख लिए। इधर इसका लोन है, ये हमने अलग से पे करना है, तो ये है अनुजिस लोन 8,000 का, ये भी नोट कर लो आप। बाई बैलेंस BD 8,000 इसको पेमेंट करनी है भाई। बैंक का बैलेंस लिख लेना है, इनके बैलेंस लिख लेने हैं, ये बैलेंस लिख लेना और काम शुरू करना। Now when you start the process of dissolution, first of all dispose of the assets। जब डिस्पोज करने हैं उसका रूल ये है कि ये है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। डिस्पोज करने के लिए सारे एसेट्स यहाँ ले आओ, जितने ये एसेट्स हैं, ये स्टॉक है, गुडविल है, डेटर्स है, फिक्स ये स्टॉक है, गुडविल है, डेटर्स है, इसके साथ ये प्रोविजन है, ठीक है, और ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये बेचने के लिए इधर ले आइए रियलाइजेशन अकाउंट में। सो वो एसेट सारे के सारा, एवरी एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। किसी एसेट अकाउंट को बंद करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है हमें। जब एसेट खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, जब उसको बंद करना है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इधर आपने लिखना है टू एसेट्स। जितने एसेट्स हैं वहां पर लिखे हुए सारे एसेट्स जो है ना, आपने एक एक करके जो इधर लिख देने हैं। स्टॉक है, गुडविल है, डेटर्स है और फिक्स्ड एसेट्स हैं।
stock, debtors, goodwill, fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स, ये चार डेटर्स, चार है हमारे पास एसेट्स, इनको यहाँ सबको ट्रांसफ़र कर दो इधर। कितने कितने के हैं ये देख लीजिए। इधर हमारे पास है 5,000, गुडविल 20,000, डेटर्स 20,000, फिक्स्ड एसेट 40,000। स्टॉक है हमारे पास 5,000 का, ले आओ। डेटर्स हैं 20,000 के, गुडविल 20,000 की, और 40,000 के फिक्स्ड एसेट्स हैं। हमारी जर्नल एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू गुडविल, टू फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनी और ये अमाउंट सारी इधर आ गई। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारे ये एसेट अकाउंट क्लोज हो गए, ये भी एसेट अकाउंट बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। लेकिन ये बंद नहीं हुआ, प्रोविजन, ये प्रोविजन को बंद करने के लिए ये हमने लिखे इधर डेटर 20,000, प्रोविजन इमीडिएटली एकदम से इधर लिख दो आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये है 20,000 के डेटर्स और 1,000 की प्रोविजन इधर आप लिख दो। अब देखिए डेटर्स के सामने प्रोविजन आ गई, अपने आप ये 19 के हो गए। बट बोथ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ये भी बंद हो गया, डेटर्स भी बंद हो गए और ये भी बंद हो गया। अगर हम यहाँ पर 19 लिख दें तो सोचो, ना तो डेटर्स अकाउंट बंद हुआ, उसमें 20,000 लिखे हुए हैं, और ना ही प्रोविजन अकाउंट बंद हुआ। बंद करने हैं दोनों ही, इसलिए दोनों की अमाउंट इधर लिखी जाएगी, 20,000 इसका और 1,000 उसका। दैट्स राइट। सो लेट मी टेक इट आउट हियर। मेरा ये अकाउंट भी बंद हो गया, बैंक का बैलेंस मैंने उधर लिख लिया था,